Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. So we're starting chapter number 8 of electrical machines, and in this topic we will discuss about the ideal transformer and the theory of operation of a real single phase transformers. So in last lecture we discussed about the power in an ideal transformer should be output power must be equals to the input power, and the same goes for the reactive power and the apparent power, because we are considering the ideal transformer that it should be losses free. Means it shouldn't have any hysteresis losses, it shouldn't have any eddy current losses, and it shouldn't have any core losses present in it. Binding resistance, we consider it at zero, and we consider that there could be no flux linkage. So we can say that the output power must be equals to the input power. So the next topic that we are going to discuss today is the impedance transformation through a transformer. So impedance transformation through a transformer should be represented as like how we can transform an impedance right from the secondary side to the primary side, or the primary side towards the secondary side. So we are considering a case, secondary side of the transformer, we have connected a load. The load has an impedance which is called as the ZL. Keep it in mind, the impedance is um, just like a resistance, but it has certain imaginary part in it. So we can say that Z should be equals to R plus JX, where R represents the resistance and the X represents the reactance, the imaginary part. So we all together represent it as a ZL. So you can refer it as any load which has a certain resistance or impedance ZL. So because the impedance load is connected on the secondary side of the transformer, so the current that is passing through the load is IL, and the voltage drop across this load is equals to a VL. So impedance of an element is defined as the phasor voltage ratio of the phasor voltage to the phasor current. So because this is a load and this is the load current, and the load voltage, which should be equals to VL by IL, because the load is connected on the secondary side of the transformer, so it must be equals to VS by IS. This is the impedance that is connected on the secondary side of the transformer. So the apparent impedance of the primary circuit of the transformer is, if we referring this impedance towards the primary side, but we are saying अगर हम इस impedance को primary side से देखें तो ये हमें कैसे नजर आएगा? We can say that it should be equals to Z prime L, Z dash L, or we can say that this is the impedance on the primary side. Prime हमने ये बार हमने इसलिए लगाई है क्योंकि लोड की impedance है, but we are seeing it, observing it from the primary side of the transformer. So it should be equals to, because अगर ये primary side पे, so it should be equals to VP by IP, just like ये load impedance हमारे पास VL by IL की equal थी. अब we know that VP किसकी equal होगा, if we are representing in terms of the transformation ratio या turns ratio should be equals to AVS, और IB किसकी equal होगा, IS by A. So we can say that it should be equals to A multiplied with A should be A square VS by IS, and we know that VS by IS is actually ZL. So Z prime L should be equals to A square ZL. Means the impedance referred on the primary side should be equals to A square ZL. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इम्पिडेंस है लोड साइड पे, अगर मैं इसको प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करूं तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्क्वायर, नथिंग एल्स. ठीक हो गया. अब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू एनालाइज द सर्किट. सो हम क्या करते हैं कि सर्किट के एक पोर्शन को, सारे के सारे सर्किट के पोर्शन को हम किसी एक साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द सर्किट. जस्ट लाइक हमारे पास जो है वो ये इम्पिडेंस प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे थी, दरमियान में से हमने क्या किया, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का कुछ पोर्शन प्राइमरी साइड पे, कुछ पोर्शन सेकेंडरी साइड पे है, तो हमने क्या किया, सर्किट को एनालाइज करने के लिए जो सेकेंडरी साइड का पोर्शन था इसको उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, प्राइमरी साइड पे. दरमियान में हमारे पास क्या है, सिर्फ टर्न्स रेशियो है. इस टर्न्स रेशियो के इफेक्ट को हमने एलिमिनेट, इस टर्न्स रेशियो को यहाँ से एलिमिनेट किया, इसको यहाँ से निगेट किया, लेकिन उस इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास ए स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है. ये हम जो इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये जस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास सर्किट को हम एनालाइज करें तो सर्किट को हम एक ही साइड पे जो है वो सारे के सारे सर्किट को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं. The whole circuit can be referred to the primary side of the transformer, and the whole circuit can be referred to the secondary side of the transformer. जहां पे हमने secondary को refer किया primary side पे, so it should be Z dash L. And similarly, the same circuit can be referred to the secondary side of the transformer. उस केस में हमारे पास secondary same, primary same रहेगा और secondary side पे वो बार की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है.
So the process of replacing one side of the transformer by its equivalent at the other side voltage level is known as the referring the first side of the transformer to the second side. ये जो हमारे पास सर्किट की रिप्लेसमेंट है एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफार्मर की, उसको हम सिंपली क्या कह रहे होते हैं, रेफरिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन. So we have example here, impedance transformation to a transformer. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सोर्स वोल्टेज कनेक्टेड है 4 वोल्ट का, 480 वोल्ट का. यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका फेज गिवन है 0 वोल्ट, इसका 0 डिग्री से इसका फेज है. यहाँ से ये जनरेटर है तो कोई आईजी करंट पास हो रहा है. यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर T1 है जिसकी टर्न्स रेशो क्या है 1:10. 1:10 का मतलब ये है कि यहाँ पे ए आपके पास क्या होगा 10 होगा. यहाँ पे आगे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस कनेक्टेड है जो कि आपके पास इसकी इम्पीडेंस गिवन है, लाइन की इम्पीडेंस है Z लाइन. और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर T2 कनेक्टेड है जिसकी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है 10:1. और यहाँ पे आगे हमारे पास कोई लोड कनेक्टेड है 4+j3 ओम का, ये इसकी लोड की इम्पीडेंस है. अब हमने क्या करना है कि हम इस ये जो लोड इम्पीडेंस है इसको रेफर कर रहे हैं towards the primary side of the transformer, towards this transformer, ठीक है. तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि because this impedance is referred to this side of the transformer, so हमने क्या करना होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना a स्क्वायर से. तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा. सो जितनी भी इम्पीडेंस है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो a स्क्वायर टाइम ZL हमने किया. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इम्पीडेंस है वो टर्न्स रेशियो से पहले अपीयर होगी है यहाँ पे. और ये क्या होगी, ये पहले क्या थी 4+j3, अभी हो गया 400+j300, मतलब हमने इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड नाउ दिस इम्पीडेंस इज रेफर टू दिस साइड. और वही जो ZL है उसको हम Z बार L से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक हो गया यहाँ तक. अब अगेन हमारे पास यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मर था, टर्न्स रेशियो, ये वाला ट्रांसफॉर्मर T1 जिसकी टर्न्स रेशियो हमारे पास 1/10 या 0.1 आ रही है. अब हमने क्या करना है, सारी इम्पीडेंस को इस यहाँ पे रेफर करना है टुवर्ड्स द सोर्स साइड, टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड. तो हमने क्या करना है, सारे के सारी इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई कर देना है विद ए स्क्वायर. तो 0.18 + j 0.24 ओम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.1 तो हमारे पास ये इम्पीडेंस रेफर होगी इस साइड पे. और इसी को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो हमारे पास ये आ जाएगा इस फॉर्म में. तो ये आ जाएगा Z बार लाइन, क्योंकि हमने इसको रेफर कर दिया टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड. और ये ऑलरेडी हमारे पास Z डैश लोड था तो ये डबल डैश लोड के बराबर जो हमारे पास आ गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है. दिस इज हाउ वी परफॉर्म द रेफरिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, वी परफॉर्म द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक हो गया. आई होप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया. नेक्स्ट जो हमारे पास है रियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. अभी तक हमने जितना भी ऑब्जर्वेशन की थी वो आइडियल ट्रांसफार्मर की थी, जिसके केस में वी वर कंसिडरिंग दैट देयर आर नो लॉसेस प्रेजेंट इन द सर्किट. But if you're talking about a real transformer, it means that it has a number of losses associated with it. We will consider the winding resistance. We will consider कि हमारे पास जो है वो लीकेज फ्लक्स भी है. We will consider that we have a flux linkage. We will consider that we have the hysteresis losses and we have eddy losses as well. So सारे के सारे losses जो है वो हमारे पास कंसिडर होंगे. अब देखिए ये हमने ट्रांसफार्मर के कोर ली हुई है, इसमें एक प्राइमरी साइड है और एक हमारे पास सेकेंडरी साइड है. प्राइमरी साइड पे हमने सोर्स लगाया हुआ है. सिंगल फेज का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर कैन बी अ सिंगल फेज, एक ही फेज होगा, और इट कैन बी अ 3 फेज, लेकिन अभी हम सिर्फ सिंगल फेज को ले रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट किया हुआ है वीपी ऑफ टी, और सेकेंडरी को हमने क्या रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है. मींस अभी यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है. तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी टी, जहाँ पे ये जो लैम्डा वो हमारे पास क्या है, फ्लक्स लिंकेज है इन द कॉइल अक्रॉस विच वोल्टेज इज बीइंग इंड्यूस्ड. क्योंकि सेकेंडरी ओपन है तो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा से फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स. सो I is equals to 1 to n times phi I. Total flux linkage is the sum of the flux passing through each turn in the coil added over all the turns of the coil. हर कॉइल में से जो आपके पास फ्लक्स पास हो रहा है, इसको जब हम सारी की सारी टर्न्स के साथ ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो आ जाएगा. और एवरेज फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा बाय एन से, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. दस हमारे पास ई इंड्यूस यहाँ से क्या आ जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी. और ये फाई बार पे है क्योंकि हम इसमें फ्लक्स लिंकेज को भी कंसिडर करें. दैट शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय एन. अच्छा,
सो मैग्नेटाइजेशन करंट इन अ रियल ट्रांसफार्मर, मैग्नेटाइजेशन करंट हमारे पास वो करंट है जो कि कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, मींस जो करंट जो है वो पास हो रहा है राइट फ्रॉम द प्राइमरी साइड टुवर्ड्स द सेकेंडरी साइड। व्हेन एसी पावर इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसफार्मर, अब प्राइमरी करंट फ्लोज व्हेन सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड। ऑल्दो कि जो है हमारे पास सेकेंडरी ओपन है तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि ओपन सर्किट केस में देयर वुड बी नो करंट, बट स्टिल देयर वुड बी अमाउंट ऑफ करंट दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो कि हमारे पास कोर को मैग्नेटाइज करेगा। बिकॉज़ कोर में से हमारे पास जब वो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स फ्लक्स जब भी पास होगा इट मीन्स दैट द कोर इज मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। कोर में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स पास होने का मतलब ये है कि कोर इज मैग्नेटाइज्ड, सो मैग्नेटाइजिंग करंट वुड फ्लो थ्रू द सर्किट ऑल्दो सेकेंडरी इज ओपन। सो ई इंड्यूस्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, एनपी डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बार की इक्वल है, हमें पता है ये बार क्यों आ रही है, ड्यू टू द नंबर ऑफ ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज। और ये फाइव यहाँ से अगर हम निकालें फाइव बार तो किसकी इक्वल आ जाएगा, वन बाई एन पी वी पी ऑफ टी डी टी। बिकॉज हमारे पास प्राइमरी जो है वो साइनोसाइडल है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वोल्टेज जो हमारे पास किसकी इक्वल है, वी एम इसका मैग्नीट्यूड है और दिस विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से फाइव बार मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वी एम विच इज द मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू, ओमेगा मेरे पास इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एनपी मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स है इन द प्राइमरी साइड, एंड साइन ऑफ ओमेगा टी मेरे पास इसका फेज बता रहा है, ठीक है, साइनोसाइडल है इन। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जो कि कोर में से पास होगा, एल्दो द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक इसका मैग्नेटाइजेशन करंट है आई एम, विच इज द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ऑब्वियसली कोर में से फ्लक्स प्रोड्यूस होना है, इसके लिए हमारे पास कोर में से फ्लक्स फ्लो करना है, इसके लिए हमें करंट रिक्वायर्ड है जो कि मैग्नेटाइजेशन करंट है। और दूसरा करंट है कोर लॉस करंट, जिसको हम I into H plus E से रिप्रेजेंट करें, which is the current required to make up for the hysteresis and eddy current losses। कुछ तो कोर को फ्लक्स, कुछ तो कोर को मैग्नेटाइज करा जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट है, कुछ लॉसेस में जा रहा है जिनमें हमारे पास एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है वो आ रहे हैं। ये हमारे पास जो करंट है इसको हम कोर लॉस करंट कहते हैं, ठीक है। तो इट शुड बी द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर, जो हमारे पास जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। और ये वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो कि हमारे पास बीएच का या हिस्टेरेसिस लूप का जो है वो पैटर्न था, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट है, ये मेरे शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो साइनोसाइडल इन नेचर है, और ये जो है वो वीपी और ये जो फ्लक्स है ये आपस में एक दूसरे को विद अ सर्टेन फेज जो है वो लैग या लीड कर रहे हैं। फेज डिफरेंस में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो साइन और कोसाइन का जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से वी वुड हैव अ सर्टेन फेज डिफरेंस इन द वीपी, जो कि हमारे पास कोसाइन की फॉर्म में, और जो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे आ रहा है वो साइनोसाइडल की फॉर्म में, सो इट शुड बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज। तो मैग्नेटाइजेशन करंट इन द ट्रांसफार्मर इज नॉट साइनोसॉइडल, ठीक है। ये देखिए आप, जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो हमारे पास साइनोसॉइडल नहीं था, वो आपके पास क्या है, it has the high frequency components, they are due to the magnetic saturation in the transformer core। obviously इसमें जो है वो हमारे पास कुछ high frequency components भी आ रहे हैं जो कि ये इंडिकेट करे ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट है, इंस्टेड की साइनोसाइडल हो, ये हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप बना रहा है क्योंकि कोर की मैग्नेटाइजेशन या सेचुरेशन की वजह से। Once the peak flux reaches a saturation point in the core, a small increase in the peak flux requires a very large increase in the peak magnetization current, ठीक है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज, वी नो दैट, क्योंकि उसमें फेज डिफरेंस आ रहा है। द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द मैग्नेटाइजेशन करंट कैन बी क्वाइट लार्ज कंपेयर टू द फंडामेंटल कंपोनेंट्स। आपको पता है कि इसका फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जो कि इसको 90 डिग्री पे लैग कर रहा है। जो इसके हाई फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो कोर की सेचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट द कोर हैज टू बी सेचुरेटेड। जब कोर सेचुरेशन हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। इसमें इट मींस दैट कि जितना भी कोर जब सेचुरेशन की तरफ जाएगी उतना हमारे पास हार्मोनिक्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। इसमें जो 12, 13 और 14 स्लाइड्स है इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। एंड वी मूव टुवर्ड्स द वोल्टेज रेशियो अक्रॉस अ रियल ट्रांसफार्मर। कि रियल ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास वोल्टेज रेशियो क्या आएगी। And we know that when a voltage is applied at the primary side of the transformer, then the average flux produced by this voltage is, वो तो हमें पता चल गया कि वो किसके इक्वल होगा, number of turns on the primary side और primary voltage that is applied. So some of the flux lines leave the iron core and pass through the air। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए कि ये कोर है,
तो आल्दो के मैक्सिमम फ्लक्स जो है हमारे पास कोर में से ही पास हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो जैसे यहाँ से वाइंडिंग से जो है वो लीक हो रहा है, जिसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। The flux that goes through one of the transformer coil but not the other one is called as the leakage flux, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास फ्लक्स लीकेज हो रहा है, सिमिलरली सेकेंडरी साइड पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स लीकेज हो रहा है। The flux in the primary coil can be divided into two components. So it means that जो फ्लक्स प्राइमरी साइड से जा रहा है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक वो फ्लक्स जो कि लिंक कर रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी साइड, जिसको हम म्यूचुअल फ्लक्स कह रहे हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय phi m। और कुछ फ्लक्स हो रहा है जो कि लीक हो रहा है, जिसको हम phi lp से लीकेज फ्लक्स ऑन द प्राइमरी साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली इफ द इंड्यूस वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड, जो कि प्राइमरी की पोटेंशियल वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, np d phi p by dt। सो इट हैज अ टू कंपोनेंट्स, एक phi m और एक आपके पास phi lp। तो हमारे पास दो वोल्टेजेस यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, ep of t जो कि इंड्यूस वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड है, एंड नेक्स्ट वन इज द इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से सेकेंडरी साइड को देखें, तो सेकेंडरी साइड पे भी हमारे पास लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी साइड पे भी हमारे पास जो है वो, देखिए यहाँ पे फ्लक्स लीक हो रहा है, तो सेकेंडरी साइड पे भी हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगी, तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, इंड्यूस वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड एंड द इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स ऑन द सेकेंडरी साइड। इन इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो ये आ रहा है दैट ep ऑफ t, ratio of induced voltage on the primary side to the induced voltage on the secondary side is equals to A, it is equals to NP by NS। अगर हम यहाँ से compare करें, so it says that the ratio of the primary voltage caused by the mutual flux to the secondary voltage caused by the mutual flux is equals to the turns ratio of the transformer। So it is same that it is equals to the turns ratio of the transformer। सो वोल्टेज रेशियो अक्रॉस रियल ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इन अ गुड डिजाइन म्यूचुअल फ्लक्स को क्वाइट लार्जर देन होना चाहिए लीकेज फ्लक्स, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम क्या होना चाहिए, लिंक करना चाहिए फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी साइड, और वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को क्या होना चाहिए, लीक होना चाहिए फ्रॉम द प्राइमरी साइड एज वेल एज फ्रॉम द सेकेंडरी साइड। प्रैक्टिकली हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर जाए और वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो लीक करे, आल्दो देयर वुड बी अ फ्लक्स लीकेज, लेकिन जितना वो मिनिमम होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। Therefore the ratio of the total voltage on the primary of the transformer to the ratio of total voltage on the secondary of the transformer is given as Vp by Vs, and it should be equals to A resembles the ideal transformer। although कि practically तो ये nearly equal होगी अगर हम ये डिजाइन फॉलो करेंगे, it should be nearly equal to the real transformer। So the smaller the leakage flux, the closer the transformer will be to the ideal one, उतना ही ये transformer ideal की तरफ जाएगा, means we would have a minimum losses। Similarly जैसे हमने voltage ratio को देखा, इसी तरह से हमारे पास we have a current ratio and we have a dot convention। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की थी वो ये की थी कि there is a no load connected on the secondary side of the transformer। अब देखिए जब हम लोड कनेक्ट करेंगे on the secondary side of the transformer, so there would be a current flowing on the secondary side and there would be a voltage drop on the secondary side, that should be Vs, and the current that is flowing through the secondary side should be Is। A current flowing into the dotted end of the transformer produces a positive MMF। अब keep it in mind कि यहाँ पे dot convention use हो रही है, so current जब dotted end में जाएगा so it will produce a positive MMF। तो हमेशा जहाँ पे डॉट साइड पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव एमएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, अगर अनडॉटेड साइड पे जा रहा है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एमएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। So a current flowing in the dotted end produces a positive MMF while a current flowing in the undotted end produces a negative MMF। अगर पॉजिटिव एमएमएफ होगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एड अप कर देंगे, अगर नेगेटिव एमएमएफ होगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। If both currents are entering the dotted end, MMF will add to each other। अगर एक करंट एंटर कर रहा है दूसरा लीव कर रहा है तो they will subtract each other और आपके पास नेट एमएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड फोर्स ऑन द प्राइमरी साइड P, because we know that MMF is equals to NI के इक्वल होता है, so NP to IP and FS क्या है, माइनस NS into IS अगर ये अनडॉटेड है। अगर ये डॉटेड होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास एड अप हो जाएंगे, अगर अनडॉटेड होगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल आउट जो है वो हमारे पास कर देंगे। इन ऑर्डर फॉर एमएमएफ टू बी जीरो, करंट मस्ट फ्लो इनटू वन डॉटेड एंड एंड आउट ऑफ द अदर डॉटेड एंड। ठीक है, कि एक डॉटेड एंड से करंट एंटर होना चाहिए, दूसरी डॉटेड एंड से करंट क्यों क्या होना चाहिए, एग्जिट, ताकि हमारे पास नेट एमएमएफ जो है वो जीरो हो जाए।
ठीक हो गया। For a good design transformer, R should be very small, nearly zero, as long as the core is operated in the unsaturated region. R जितना हमारे पास कम होगा उतने हमारे पास core losses क्या होंगे, कम होंगे. So अच्छे transformer के लिए, if we need to design a good transformer, so we have to keep the internal resistance very minimum. So we have to select such material for the core that should offer the minimum resistance, minimum internal resistance. ठीक है. So this is assumption to convert a real transformer into ideal transformer. So ये हमारे पास ideal transformer है. This is a real transformer जिसका behavior हमारे पास in terms of hysteresis है. So अगर हमने ideal transformer से real transformer को compare करना है तो core must have the no hysteresis or the eddy current, so core should be laminated. We should select such material that offer the minimum hysteresis. The magnetization curve must be the ideal one. ठीक है. The leakage flux must be zero. इसका मतलब क्या, ऑल द फ्लक्स इन द कोर कपल्स विद बोथ द वाइंडिंग्स, मतलब कि सराउंडिंग में आपके पास फ्लक्स लीकेज ना हो, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी जीरो. ठीक है. सो आइडियली तो ये चीजें पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन मेक देम एज मिनिमम एज पॉसिबल, ताकि हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करे. So equivalent circuit of the transformer की अगर हम बात करें तो it should be divided into 4 losses. The losses that occur in a real transformer have to be accounted for in any accurate model of the transformer. So जब हम equivalent circuit बनाएंगे किसी भी transformer का, तो उसमें इन सारे के सारे losses को जो है वो incorporate होना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास क्या है, copper losses है. copper losses क्या है, heat resistive losses हैं, या winding losses हैं, या heat losses हैं. ठीक है. इनको हम I square R से represent कर रहे हैं. They are the resistive heating losses in the primary and secondary of the transformer. They are proportional to the scale of current in the winding. Because हर winding की अपनी कोई ना कोई internal resistance है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे heat generate होगी. That losses are incorporated as the copper losses. Copper losses primary side पे होंगी, copper losses primary secondary side पे भी होंगे. Primary side पे because they must be equals to I square R, तो primary side पे should be IP square time R, और secondary side पे it should be equals to IS square और R into RS, और प्राइमरी साइड पे ये RP के इक्वल होगा, मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑन द प्राइमरी साइड, और RS का होगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड. नेक्स्ट लॉसेस हम इनकॉर्पोरेट करने हैं वो एडी करंट लॉसेस हैं. आपको पता है दे आर द हीट रेजिस्टिव लॉसेस. ठीक है. इन द कोर, एंड दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर. की ट्रांसफार्मर को हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के स्केयर टाइम्स हमारे पास एडी लॉसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगे. हिस्टेरेसिस लॉसेस आपको पता है क्या होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द रीअरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स इन द कोर ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल एंड ऑन नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द अप्लाई वोल्टेज इन नॉन लीनियर बिहेवियर आपको देते हैं, और आपको पता है क्यों देते हैं. Leakage flux, the fluxes which escape the core and passes only through one of the transformer winding. These escape fluxes produce the self inductance in the primary and the secondary coil. एक आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करेगा, और एक क्योंकि हर वाइंडिंग में से अपना जो है वो फ्लक्स लीक हो रहा है जो कि हमारे पास सेल्फ वोल्टेज इंड्यूस करेगा ऑन द प्राइमरी साइड एज वेल एज ऑन द सेकेंडरी साइड. आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम ऑनलाइन सेशन में जो है वो डिस्कस कर लेंगे. आपको यहाँ तक समझ आ गई है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के ईच पार्ट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. आप अपना ख्याल रखिए. टिल देन, अल्लाह हाफिज.